Hello students, very good morning to all of you. And today I am coming with another chapter, and this chapter is linear equation in two variable. In the previous class we have completed the chapter polynomial, and after polynomial the next chapter is linear equation, and this is linear equation in two variable. Means the equation have degree 1, but it has two variable. It means there are two variable x and y. So the standard form, as you see in the video, that here this is the standard form of linear equation in two variable ax plus by plus c. It is polynomial. When we put here equal to 0 or equal to something else, it becomes the equation. So ax plus by plus c, here the coefficient of x is called a, coefficient of y is called b, and and the number which do not contain any alphabet like any variable like x, y, z is called, only number is called constant. So now here we know about the solving of such kind of equation. If two or three equations has been given, then how can you solve this equation? How can you find the value of the variable? So there are different methods, like here methods of solving these kinds of equation: graphical method, second substitution method, elimination method, and cross multiplication method. At first we are going to discuss about the graphical method. How can we solve the equations by graphical method? So we have taken here example. Let one of the equation is x minus 2y equal to 0, and another equation is 3x plus 4y equal to 20. So how to solve by graphically? So first of all we solve each equations. At first x minus 2y is 0, it is given. So we make anyone as a subject. So here we take the x on one side and the remaining parts on the other side. So remaining parts is 2y, so we shift the 2y on other side of equal to, so it becomes x equal to 2y. Now we put any value at the place of y. So we have taken 1 here at the place of y. So if we have taken 1 here, so it becomes x equal to 2 into 1, 2. We take another value of y equal to minus 2. So here x becomes 2 into minus 2, it becomes minus 4. Now from these two values we make here a table. When we take x equal to, when we take y equal to 1, we got x equal to 2. So here put here at the place of x and y. And when we take y equal to minus 2, here we get x as minus 4. So one of the table we obtained from first equation. Now from the second equation, this is the second equation, 3x plus 4y equal to 20. So here 3x plus 4y equal to 20. We again shift the 4y on the other side. 3x equal to 20 minus 4y. So now we shift the 3 to other side. So x equal to 20 minus 4y by 3. This is the longer side. This is the greater side. So we put here value of y. We can take any value at the place of y. So we take y equal to 5. Then what it becomes? 4 5 is 20. 20 minus 20, here we solve it. And 20 minus 20, it becomes 0. 0 by 3, it becomes 0. In the second case, we have taken value of y as 2. So 20 minus 4 into 2, 20 minus 8, it becomes 12 by 3, it becomes 4. So from these two, we make another table here. When y equal to 5, when we have taken here y equal to 5, then we got x equal to 0, and when y equal to 2, we got x equal to 4. So here is the another table. Now by using these two tables, we draw graph here. So see here, this is y axis and this is x axis. You have drawn the graph in previous classes. I know very well how to draw the graphs. If the points are given, such kinds of tables are given, and you have read these graphs in the previous class, in class 9. So but see here how we draw the graph. So at first, the first equation
here x equal to 2 and y equal to 1. So here is x equal to 2 and here is y equal to 1. So we draw a line here from these two places, one horizontally parallel to horizontal, one parallel to vertical, and these two lines where intersect, this is the coordinate 2 1. This is the coordinate of this point 2 1. Another is minus 4 minus 2. So we take here x minus 4 here and y minus 2 here. So from this we draw a vertical line, from this here we horizontal line. These two lines meet here. So this is the point of intersections of these two coordinates. So this is minus 4 minus 2. Now we got these 2 points. So using a scale, we draw a line which passing through these 2 points, and at these 2 points, at the line on the above these lines, we write an equation of which this line represent. So it is x minus 2y equal to 0. Now from another table it is 0 5, x equal to 0 and y equal to 5. Here is the point. And another point is 4 2, x equal to 4 here and y equal to 2 here. So these two, we get these 2 points. So by using a scale, we draw a line which passing through these 2 points. We observe that these 2 lines intersect each other at this point here. So this is the solution. The point where these 2 lines intersect is the solution of the given equation, is the answers of the given equation. So how we get the answer from this? The points where it intersect, we draw a line vertical to the x-axis. The point where these in a point of intersection meet to the x-axis is value of x, and one to the horizontally to the y-axis. It meets the y-axis at 2. It means its solution is 4 and 2. So here solution of x equal to 4 and solution of y equal to 2. Means we have got the note, the 2 lines intersect, hence equation has only one common solution. देखिए ग्राफ तो आपको अलग अलग तरह का आएगा, तो ऐसा ग्राफ जिसमें 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन. क्यों इसका एक सॉल्यूशन होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों लाइन पर है, इस लाइन पर में भी है, इस लाइन पर. और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इस इक्वेशन को. और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इस इक्वेशन को. इसका मतलब क्या हो गया? ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया इन दोनों इक्वेशन का. तो हमको ऐसा ही सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वो एक नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो इस कंडीशन में हमने क्या पाया? ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. क्यों सेटिस्फाई करता है? क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस पर कोइंसाइड करता है. ये पॉइंट दोनों लाइंस पर आता है. तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 2 होगा. ठीक है. अब हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखिए यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18. ना उसी तरह से सॉल्व किया. पहला इक्वेशन के लिए 2x + 3y = 9, फिर यहाँ से 2x 9 - 3y हो गया, x = 9 - 3y/2 हो गया. फिर यहाँ से 2 वैल्यू हम लोग लिए हैं, y का वैल्यू 3 ले लिया. हम बोले हैं x और y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग विच मे यू वांट, जो आप चाहते हैं वैसे ले सकते हैं. तो y का वैल्यू 3 लिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें पुट कर दिए और इसका वैल्यू आ गया 0. फिर y का वैल्यू हमने एक जगह -3 ले लिया. देन व्हाट वी गेट 18/2, इट बिकम्स 9. तो इन दिस वे वी गॉट द 2 वैल्यूज एंड हियर वी मेक ए टेबल यूजिंग दिस 2 वैल्यूज. अब हम लोग आते हैं दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पे मैं था 4x + 6y = 18. हियर इज सेकंड इक्वेशन 4x + 6y = 2. इसको भी सॉल्व किया है. यहाँ से भी x का वैल्यू निकाले हैं. फिर यहाँ पे ये ग्रेटर साइड है, इसमें y है, तो y का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए हैं? -1 पुट किए. उसके बाद इसमें इक्वेशन में सॉल्व किए हैं, सॉल्व करके 6 आ गया है. फिर y का वैल्यू 5 ले लिया. इन्हें 2 सॉल्यूशन लेते गए हैं और यहाँ से -3 आ गया. फिर इन दोनों से यहाँ पर मैं एक टेबल ले लिया. अब इन दोनों टेबल से हम यहाँ पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या देखा? यहाँ पर देखिए 0 3 है, तो देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमको. एक 9 - 3 है, तो 9 कहाँ है भाई? 9 यहाँ पर में होगा और -3 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया.
तो ये और ये पॉइंट को स्केल से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए, और इस लाइन के ऊपर में ये जिस इक्वेशन का था क्या था 2x + 3y = 9, उस इक्वेशन को लिख दिए 2x + 3y = 9। अब दूसरा जो टेबल है यहाँ पर 6 - 1, तो हम 6 - 1 देखते हैं कहाँ है। 6 कहाँ है, 6 यहाँ है और -1 यहाँ पर है। ये पॉइंट ले लिए, ये -1 का पॉइंट, ये 6 का पॉइंट यहाँ ज्वाइन किया, ये पॉइंट हो गया 6 - 1। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा -3 और 5, तो -3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 5 किधर बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से 5 से इधर, तो ये पॉइंट मीट किया। अब ये पॉइंट हो गया -3 5। अब -3 5 और ये 6 - 1, इस दोनों को मिलाते हुए फिर एक लाइन ड्रॉ किए। तो हम देखें क्या कि ये जो लाइन है, ये पहले जो लाइन ड्रॉ किए थे उसी के ऊपर कॉइंसाइड कर रहा है। मतलब ये क्या सिचुएशन हो गया यहाँ पर में कि दोनों लाइन, तो इस लाइन के ऊपर में एक तरफ, यानी कि वही लाइन जो है वो दूसरे इक्वेशन का भी लाइन है, तो इसको लिख दिया यहाँ पर 4x + 6y = 18। तो यहाँ क्या हो गया कि चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक लाइन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों सॉल्यूशन होंगे? बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स, all of the points that lies on these line satisfy both the equation। जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का भी अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। क्या कोऑर्डिनेट होगा? ये जहाँ x को टच करेगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ y को टच करेगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। तो हर पॉइंट्स का अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, और उसका अपना एक x होगा, अपना एक y होगा, और वो दोनों जो वैल्यू होगा x और y, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? तो एक लाइन पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हमने यहाँ पर 2 ग्राफ पढ़ा। एक ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, एक लाइन ग्राफ में क्या हो गया कि लाइन जो है कॉइंसाइड कर रहा है। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहाँ कॉइंसाइड कर रहा है वहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं हम लोग एक तीसरा ग्राफ में। देखिए यहाँ पर ये थर्ड ग्राफ हमने लिया है। ये क्या है, x + 2y - 4 = 0, और दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0। अगेन फिर से हम लोग पहला इक्वेशन ले लिए, और इस इक्वेशन में से फिर x को साइड कर लिए, बाकी सबको एक साइड कर लिए, 4 - 2y। यहाँ फिर से y का वैल्यू पुट किए 1, x का वैल्यू निकाल लिए, फिर से y का वैल्यू एक अनदर पुट किए 2, फिर x का वैल्यू निकाल लिए। इन दोनों से एक टेबल बना लिए। फिर दूसरा इक्वेशन लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। फिर यहाँ से भी 2x को साइड कर लिए, 4y को दूसरी तरफ भेज दिए, x का वैल्यू यहाँ से निकाले। अब यहाँ पर y का वैल्यू हम पुट किए 3, और सॉल्व करके x 0 निकाल लिए। फिर y का वैल्यू पुट किए 2, x को सॉल्व करके फिर यहाँ से x का वैल्यू 2 निकाल लिया, और फिर यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर लिए। अब इन दोनों टेबल की मदद से फिर से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ देख रहे हैं एक वैल्यू क्या आया है 2 1, x = 2 एंड y = 1, ये यहाँ ये पॉइंट आया। दूसरा है 0 2, तो 0 2 ये पॉइंट आया। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की मदद से एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लिए। और चूंकि ये जो इक्वेशन था, ये किस इक्वेशन का ग्राफ था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट x + 2y - 4 = यहाँ लिख दिए x + 2y - 4 = 0। अब सेकेंड टेबल जो हम लोग यहाँ लिए हैं 0 3, तो 0 3 कहाँ होगा, तो ये देखिए 0 और 3 ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है 2 2, तो 2 2 कहाँ होगा, तो ये देखिए 2 और इसी के लाइन में आगे बढ़े ये 2, ये पॉइंट हो। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए, और ये लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंड इक्वेशन को, x + 2x + 4y - 12, तो यहाँ लिख दिए 2x + 4y - 12 = 0। अब जब यहाँ पर देखते हैं, बट ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो रहा है, और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट करता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों इक्वेशन होगा, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन होगा, जो दोनों लाइन पर में आता हो। क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, टच करेगा, मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तब उसमें कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होगा। लेकिन चूंकि ये पैरेलल है, कहीं मीट करेगा नहीं इसमें, इसका मतलब इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इन दोनों के कोई कॉमन आंसर नहीं होगा, कोई ऐसा आंसर नहीं होगा, x और y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है, such kind of equation could not be solved, such kind of equation do not have a common solution, so we can say that it is inconsistent, means इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 3 तरह का ग्राफ हमने पढ़ा। एक ग्राफ में क्या हो गया, एक इक्वेशन इस तरह का था जहाँ पर में
लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक जगह क्या देखें कि लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है तो उसका क्या हो गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर टू मेनी सॉल्यूशंस। और एक जगह क्या देख रहे हैं कि ग्राफ लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिए हम, द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन आर पैरेलल एंड सिंस पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हेंस इक्वेशन डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट हेंस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इस तरह का अगर पैरेलल लाइन आता है तो हम क्या बोलेंगे कि उस इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। अगर कॉन्सिडेंट लाइन आता है, मैंने कॉन्साइड करता है, एक के ऊपर दूसरा लाइन आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ग्राफ लाइन कॉन्साइड ओवर ईच अदर हेंस सच काइंड ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है मतलब उसमें एक पॉइंट कॉमन होगा तो हम कह सकते हैं सिंस लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर हेंस द इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा आंसर होगा, एक ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आज हम लोग इसी विषय पर मैं चर्चा किए हैं कि इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब आप लोग जो है इस पर मैं डिफरेंट आपके बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, उन क्वेश्चंस को लीजिए और आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए और वहाँ देखिए इन डिफरेंट क्वेश्चंस में कि किस में इंटरसेक्ट करता है, किस में कॉन्साइड करता है, और वहाँ पे मैं लिखिए उसको जिसमें इंटरसेक्ट करता है उसका सॉल्यूशन लिखिए कि कहाँ इंटरसेक्ट किया, उसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, उसके हिसाब से सॉल्यूशन लिखिए। जो कॉन्साइड कर गया वहाँ लिखिए कि सिंस लाइन कॉन्साइड सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वहाँ सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितना सॉल्यूशन लिखिएगा। और जहाँ ग्राफ लाइन पैरेलल आता है तो वहाँ लिख दीजिए सिंस द ग्राफ लाइन आर पैरेलल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सो दे हैव नो सॉल्यूशन। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।